दरअसल तेरे हथ दे कुछ नहीं, ते जिहदे हथ दे सब कुछ है ते ओदे हत्थां ते भरोसा रख, चिंता बिल्कुल ना कर। वो बड़ा सियाना है और उसनूं हर गल दी समझ है, पर बंदा कहंदा लै नहीं, मेरे हथ च बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं इस तरह दी विचार एक दफा सरवण करा रहा सी दिल्ली, एक नौजवान बड़ा औखा होया, कहने लगा ज्ञानी जी अजोका युग ऐसा नहीं कि किस्मत प्रालब्ध ते रब ते भरोसा कीता जाए, अपने हत्थां ते भरोसा करना चाहिए। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਉਦਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਭਾਗ ਕਿਸਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸੁਸਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो उन्हें पता मैनू की दलील दिती, कहने लगा एक किसान ओदे कोल 16 बीघे खेती होवे ते दूजे कोल भी 16 बीघे, ते एक चंगा बीज पावे, सोहणे ढंग नाल हल चलावे ते वधिया खाद पावे, ते कुदरती गल ओदी खेती चंगी होगी। ते जिहड़ा दूसरा है ना, ओ बीज भी वधिया ना पावे ते वक्त सिर पानी भी ना देवे ते जमीन ते खाद भी ना पावे, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ खेती ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਤ ਕਰ ਲੈ ਉਨੀ ਘੱਟ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਖਾਦ ਪਾਈ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ खेती ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, खेती ਉਸਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਹੋਊ। ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ खेती ਪੱਕਣ ਤੇ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ खेती ਤੇ ਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ खेती ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ खेती ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ। मैं अज की पंजाब विच देखिया ते 500 साला गुरु अमरदास जी महाराज दे गुरपुरब ते मैं गोबिंदवाल साहब जा रहा सी। रस्ते च जद गड़ा पेना ते एक खेत तबाह हो गया, एक बच गया, एक पिंड सारा ही उजड़ गया, एक पिंड बच गया। इनू की आखो? वो कहंदे नहीं, ये तो नेचुरली है, ये तो कुदरती है। ते मैं कि कुदरत मनुख दे हथ च है? कहने लगे नहीं। ते मैं फिर इत्थों ही समझ, जे तेरे हथ च नहीं तो फिर इत्थे एक गल समझ ले, फिर किसी दे हथ च है। इन्ना वड्डा संसार तू आखों किसी दे हाथ च नहीं है। ये सूरज चंद तारे किसी दे हाथ दे च नहीं, ये जमीन आसमान किसी हाथ दे च नहीं, ये सागर ते दरिया किसी हाथ दे च नहीं। ते बहुत वड्डी मूर्ता होगी, किसी दे हाथ दे च नहीं, किसी दे हाथ दे चलाए चल रहे, किसी दे हाथ दे च ये सारा निजाम चल रहा है, सारा काम हो रहा है। एवें ना समझ कि एवें बेपरवाहियां नाल कोई सिलसिला जो है चल रहा है, और जिस दे हाथ तो ये सब कुछ हो रहा है, ओदे हत्थां नाल जुड़ना ही बस जिंदगी दा मनोरथ है और चिंतावां दा अंत हो जाता। चिंतत ही दिसे सब कोय, चेते एक तिन्ही सकोय। महाकवि तुलसी दी जीवन दी बड़ी सुंदर घटना मैनू चेते आ गई। ये पढ़दे हुंदे सन आश्रम दे विच बनारस, ते इन्हां दा जिहड़ा विद्या गुरु से उन्हां ने सेवा लाई हुई सी। तुलसी दी एक बूटी हुंदी है, जड़ी बूटी बड़ी सुंदर हुंदी है। हिंदुस्तान दे विच तकरीबन प्राचीन समय ते हर घर दे च हुंदी सी। ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਬੁਖਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੌਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਤਾਪ, ਨਮੂਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ, ਕਈ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो करीबन हर बंदा अपने घर दे ਉਹਨੂੰ ਉਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤੁਲसी ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। मतलब इन्ना है कि ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸਨ, ਖੂਬੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸਨ कि ਉਹਨੂੰ धर्म मंदिर ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਬਈ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੀਆਂ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੇਘ ਬਿਨੋਦ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਤੇ ਜੜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਾਪ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਮਲਾ ਗਏ, ਮੁਰਝਾ ਗਏ, ਸੁੱਕ ਗਏ। ਗੁੱਸੇ ਚ
विद्या गुरु ने पूछा भी तेनू क्या सी एक एक बूटे च पानी दे गोडी करी तेरे होया कि सारे बूटे सुक गए कमला गए। ते तुलसी हाथ जोड़ के कहंदा है भी गुरुदेव गल ये है मैं पानी पांदा रहा गोडी भी करवा रहा पता नहीं क्यों कमला गए पता नहीं क्यों सुक गए ने पता नहीं क्यों मर गए। ते विद्या गुरु ने बहुत लंबी चौड़ी ताड़ना च कह दिता तू झूठ बोलदा ये हो ही नहीं सकता कि पानी तो देने ते कुमला जा तू गोडी करें ते फिर कुमला जा नहीं तो मेहनत नहीं की तदे कुमला गए। कहते गुरु की ताड़ना हुई इस ताड़ना करके हिरदा अंदरों दुखी होया ते दुखी हिरदे चों शायरी का जन्म होया कविता का। अंदरों एक श्लोक लिख गया तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूं को मिलाए राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरे आए। कहंदा हद हो गई मैं बूटियां नूं सिंचदा रहा ते सुक गए ते जिहड़े पहाड़ां ते बूटे खड़े ना कोई माली है ना कोई गोडी करदा है ना कोई पानी पांदा है ना कोई खाद पांदा हरे भरे ही खड़े। तुलसी कहने गुरुदेव गल है जिन्हां नूं रब सुकावे ते मैं किथों हरा करा ते जिन्हां नूं रब ही हरा भरा रखना चाहे ते मैं कौन हां उन्हां नूं सुका सकदा। महात्मा बुद्ध अपने परम उगे शिष्य आनंद दे नाल आ रहे सन जंगल विच ते आनंद कहण लगे तुसी कहंदे हो कि जो होनहार घटना है वो हो के रहिंदे और मनुख तो सब कुछ बेवसी विच जिसने जिंदा रहना होवे उन कोई मार नहीं सकता ते जिन्हें मरना होवे उन कोई बचा नहीं सकता। ये गल किस हद तक सही है आनंद कहने लगा। महात्मा बुद्ध कहने लगे इस गल नूं तो एक पासे रहन दे सच्चाई मुकम्मल सच्चाई होंदी है जेड़ा बंदा थानू कहे ना भी ये गल किसी हद तक सच है सच किसी हद तक नहीं हुंदा सच या पूरा ना हुंदा है या फिर झूठ हो गया सच मुकम्मल हुंदा है। हुण कोई बंदा आके जिहड़ी मिश्री है इत्थे तक ते मिठी है अगों नहीं मिठी तो अगों मिठी मिश्री नहीं हो गई तो तू इंज कहे बस इत्थे तक मिश्री है अगों मिश्री नहीं है। इस हद तक सच है अगों नहीं है। दरअसल सच की कोई हद नहीं होगी सच या तो पूर्ण सच होंदा है या फिर झूठ हो गया। तो आनंद कहने लगा महात्मा जी किस हद तक गल सही है कि जो जीवना चाहे उसनु कोई मार नहीं सकता ते जिथे मौत है उन्हें कोई बचा नहीं सकता। महात्मा बुद्ध कहने लगे हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त कहते ने उन्होंने दे शिष्य ने आनंद ने कह दिता सब कुछ फिर परमात्मा के हाथ च है। हाँ परमात्मा के हाथ च जीवन भी ते मरण भी। हाँ जीवन भी ते मरण भी। इस वास्ते सामने निश्चिंत हो जाना चाहिए असी आनंद च रहना है। आनंद स्वामी ने सामने एक खड़िया होया बूटा सी फुल्लां दा जंगली ते महात्मा बुद्ध नूं कहण लगे ये बूटा किन्ने क चिर तक रहेगा। महात्मा बुद्ध कहण लगे यदि कोई लंबी जिंदगी लगती है काफी दिन रहेगा। तो आनंद महात्मा बुद्ध दा शिष्य उन्हें पुट के परे मारे कहने को थोड़ा वाक थे झूठा हो गया और इते हुणे पुट के मैं परे सुट दिता है ये खत्म हो गया। तुसी कहंदे काफी समय तक रहेगा ये जिंदगी की झलक काफी समय तक दिसदी पई है मैं तो पुट के परे कर दिता कुमला गया हुणे सत्यानाश हो जाना। महात्मा बुद्ध चल पे ते आनंद ने सोचा मैं लाजवाब कर दिता। 15-20 दिनों तो बाद जो लंघे ना उथों ते बूटा अपनी थां ते खड़े आया। आनंद दंग रह गया ते महात्मा बुद्ध कहने लगे मैं तेनों कहंदा सी मैंने लंबा रहना ये जिंदगी की झलक दिसदी पई सी इन्हें काफी चिर रहना। दरअसल पुट के जो बाहर सुटिया तो मीह पैना शुरू ओदियां जड़ा फिर लग गई जो जड़ा लगियां खड़ा फुल से तरीके नाल खड़े रहे। इतनी सूक्ष्म दृष्टि विच भी संत जन चले जाते हैं। इस वास्ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते मौत की चिंता ही नहीं हुण जीवन की लालसा ही नहीं। हुण सानू दिस पिया है कि जीवन ते मरण किसी के हथ दे च ते चिंता काती। राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरि आए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक परम वाक आप कहते हैं परिंदे ना गिरे जर दरख्त आब आस कर देहंद सोही एक तू ही तिलंग राग दी बाणी है फारसी दी साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का वाक। आप कहते हैं परिंदे ना गिरे जर ए जिहड़े पंछी ने परिंदे
इन्होंने कोई धन अन्न दाने जिहड़े ने स्टॉक नहीं किए, कल वास्ते नहीं बचाए, कोई जमा नहीं है इन्हां कोल। पंछियां नूं कहो अज ते तुसीं चोगा चुग के आ गए हो ते कल वास्ते कुछ लैके आए हो कि नहीं, परसों वास्ते भी कुछ है कि नहीं। दरअसल पंछियां दी दुनिया च परसों नहीं है, कल नहीं है, क्योंकि कल होवे ते चिंता भी होवे। इस वास्ते कहंदे कोई पंछी पागल नहीं हुंदा, बंदा ही पागल हुंदा। कोई पशु पागल नहीं हुंदा, बंदा ही पागल हुंदा है। हाँ, कदी कदी वो पशु जरूर पागल हो जाता है जो बंदियां दी संगत करे, जो मनुख दी संगत विच रहता है, नहीं तो पशु पागल नहीं हो सकता। जे कोई कुत्ता पागल हो गया है तो सिर्फ इस वास्ते कि मनुख पागलों की संगत की, उन्हें बन के रखे, उन्हें उसनूं कुदरती ढंग नाल जीवन नहीं दिता, हो गया पागल, वधिया हो गया। कोई पशु अगर पागल हो गया है तो समझ लेना मनुखा दे नेड़े रहा होगा, नहीं तो कोई पशु पागल नहीं होता, क्योंकि पशुओं की दुनिया च कल नहीं है। कोई पंछी पागल नहीं होता, क्योंकि पंछियों की दुनिया दे कल नहीं, मनुख की दुनिया दे कल है और चिंता है, ते चिंता करके पागल हो जाता है और बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो मैं अर्ज करा, साहिब कहते परिंद है ना गिरहे जर, दरख्त आब आस कर। ये ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਖੜੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੇ ਸੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। परिंद है ना गिरहे जर, दरख्त आब आस कर, दिहंद सूही एक तू ही एक तू ही। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहने कमाल दी गल, ये जिहड़े पंछी ने ये ते निश्चिंत होवन, ये जिहड़े दरख्त ने ये ते निश्चिंत होवन, ते तू मनुख हो के चिंता दे छावें, तैथों ज्यादा बदकिस्मत होर कौन होवेगा, तैथों ज्यादा मूड होर कौन होवेगा। पंछी चहचहांदे रहन, गीत गांदे रहन, ते दरख्त हरियावली वंडदे रहना, ते तेरे चेहरे ते मुरझाहट होवे, तू मुर्दा होवे, तेरे चेहरे ते वट पए होन, तू होके भरदा रवें, तू बेजारियां ते परेशानियां दे चोवें। कम से कम इन्हां पंछियां तो ही चहचहाना सीख ले, पंछियां तो ही गीत गाना सीख ले, ते हरा भरा रहना तू दरख्तां तो सीख ले। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे गुरु बन तेरन हरिया कीतिया, नानक क्या मानुख ऐ मनुख। जिस गुरु ने, जिस परमात्मा ने दरख्तां नूं हरा भरा कर छड़िया ते फल फुल ला छड़े ने, वो तैनूं हरा भरा नहीं करेगा। कम से कम तू उहदा चिंतन ते कर। जे दरख्त हरे हो सकते हैं, बूटे हरे हो सकते हैं, उन्होंने फुल भी लग सकते हैं, उन्होंने फल भी लग सकते हैं, क्या तेनों नहीं लगणगे? तेनों भी लग सकते जे तू किधरे चिंतन करे। चिंतन करना एक ऐसा बीज है जिहदे च ओ बूटा पैदा होंदा है जिस दे उत्ते 12 महीने बहार बनी रहती, कदी खजा नहीं आती, कदी पतझड़ दी रुत नहीं आती, सदा खेड़ा बनिया रहता है। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर पल पंछी खेल कर। ऐसा बीज बोए, ते ऐसा बीज की है अब कल आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, कर्म भूम में बोवो नाम। तू नाम बो, इहदे चों ओ बूटा पैदा होवेगा जिस ते सदा बहार, तू अठे पैर खिड़िया रवेगा, मस्ती च रवेगा। मैं देखदा जिथे ऐसा बीज बोया गया है वो तत्ती तवी ते बैठ के भी मुस्कुरांदा है, ते जिथे ये बीज ना होवे वो मखमली गदेलियां ते भी रोंदा पिया, पिटदा पिया, इंज तड़पदा पिया जिवें जल तो बिना मच्छी। हालत ए और असी क्षमा करनी सोहनी ठंड दे विच भी कलपदे पए हां, बेजार हां, पर कोई उबलदी देख दे च भी मुस्कुरांदा है, गीत गांदा है, आनंद गांदा है। और इस चक्कर दे च कदी ना पैना, बाहर भी ठंड नाल कोई हिरदा भी ठंडा हो जाता है, कतई नहीं। ऐसा एक नाम लिखे अपने सरदार नानक सिंह ने, बर्फां थले अग, ठंड दे थले कितनी अग दबी पई है, कितनी अग। ये ठीक है कि जेडे रब्बी गुण ने ना, रब्बी गुण ये सारे ठंडे ने, सबर संतोख दया सील संजम खिमा सब ठंडे ने। ते अवगुण जितने ना सारे गर्म ने, क्रोध गर्म है, वासना गर्म है, लोभ गर्म है, निंदा गर्म है, झूठ गर्म है और दुश्मनी गर्म है, जितने अवगुण ने गर्म ने। इस वास्ते असी भले मानस बंदे नूं कह देने आ जिहदे कोल रब्बी गुण होण बड़े ठंडे सुभाਅ दा, सुख रब्बी गुण ने, ते जिहदे कोल ही अवगुण होण असी कह देने बड़े गर्म सुभाਅ दा, बहुत गर्म है, इहदे कोल ना बैठी अग है, साड़ दे चिंगारियां ला देगा। पर ये जिहड़ी अंदर दी अग ते अंदर दी ठंड है, इहदा बाहर नाल कोई तल्लुक नहीं। हुण बाहर ठंड होवे ते ठंडे देश दे बंदे अंदरों में ठंडे होण, ये कोई लाजमी नहीं। मैं देखा जितने को पत्थर हिंदुस्तान दे कश्मीर दे आउंदे ने, किसी होर सूबे च नहीं हुंदे, ते सब तो ज्यादा ठंड भी उत्थे होगी।
ठंडे देशों ने हाइड्रोजन बम बना छड़े, एटम बम बना, गर्म देशों ने नहीं बने। वो तो अजे तीर तलवार दी बैठे ने, वध तो वध बंदूकां दी दुनिया च पहुंचे ने। पर जिहड़ा देश ठंडा है उन्हां ठंडे देशों ने हाइड्रोजन बम बना दिता है, एटम बम बना दिता है, ते दुनिया नूं भी जाच सिखा रहे ने वे इंज बनाई दा किवें बंदे तबाह करी देने, किवें एक गिराओ ते सारा जिहड़ा मुल्क है, सारा जिहड़ा शहर है वो मौत दी आगोश दे जो है सो जाए। बाहर ठंड है, अंदर बड़ी गर्मी। पुरखा बाहर ती जिहड़ी ठंड है ये ते सूरज दी गर्दिश नाल या जमीन दे चक्कर दे नाल पैदा होंदी है, पर जिहड़ी अंदर दी ठंड है वो रब दे नाम जपण नाल पैदा। शीतल थीवे नानका जपंदड़ो हरि नाम, चंदन चंदना सरद रुत मूल न भी थई काम। जो बंदे दा मन शीतल होंदा है नाम जपदियां जपदियां सारियां चिंतावां दा अंत। चिंता बहुत गर्म है और चिंतातुर मनुख क्रोधी हो जाएगा, चिंतातुर मनुख वासना दे चोवेगा, चिंतातुर मनुख लोभी होएगा, चिंतातुर बंदा बदले दी भावना ते उभड़ेगा। पर शांत बंदा उथे तमाम दैवी गुण होंगे। साहिब अर्जन देव जी महाराज दा फरमान है, चिंतत ही दिसे सब कोए, चेते एक तेनी सुख होए। साहिबा दी बाणी कहंदी है, पुरख किहदे अगों अपनियां इस समस्यावां रखदा पिया ते खुद समस्या विच पे। दुनिया दे कोई ऐसा नहीं जिस मनुख दी कोई समस्या नहीं, जिहदा कोई सवाल नहीं, जिहदे कोल कोई चिंता नहीं है भी। सालकन चिंतत ही दी से सब कोए, मैं जिथे तक देखदा चिंता ही चिंता। और इनू एक मानसिक रोग कहंदे ने। वध जाए ना बहुता चिंता किधरे बहुत वध जाए ते मनुख अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठता है। और शायद थोड़े ज्ञात होवेगा अजोके समय विच पागलों की तादाद बढ़ती जा रही है। इतने पागल कभी पहले जमीन दे उत्ते नहीं सन जितने हुण ने। पर गजब दी गल है, जितने सियाणे हुण ने इतने पहले कदी नहीं सन। सियाणप ने ही चिंता नूं जन्म दिता, चिंता ने पागल बना दिता। जितनी सियाणप वधी समस्या उतनी वध गई। और इतनी गल जरूर है कि इस तरह की सियाणप नाल जिंदगी दियां समस्यावां दा कोई हल लभदा नहीं। महाराज उंज भी कहंदे ने, सहस सियाणपां लख होए तां एक ना चले ना। तेनू सुख मिल जाए, तेनू शांति मिल जाए, परमात्मा दा मिलना सुख दा मिलना है, सुख दा मिलना रब दा मिलना है। रोशनी दा मिलना सूरज दा मिलना है, सूरज दा मिलना रोशनी दा मिलना है। जिवें सारी रोशनी सूरज दे नाल जुड़ी हुई है, सारे सुख रब नाल जुड़े हैं। रब दा मिलना सुख दा मिलना है, सुख दा मिलना रब दा मिलना है। इन्नी मैं अर्ज कर ये जुड़े ये वक्त नहीं। हुण कोई बंदा आखे रब दी गल छड्डो, बंदगी दी गल छड्डो, सुख मिलना चाहिए, ये ते इंज कहंदा है सूरज ना चढ़े, सूरज दी कोई गल नहीं, चानना ही मिलना चाहिए। कित्थों मिलेगा? सूरज तो बिना चानना तेनू कित्थों मिलेगा? सूरज तो बिना प्रकाश तेनू कित्थों मिलेगा? नाम तो बिना पुरखा तेनू सुख कित्थों मिलेगा? मिलेगा ही। तो समुची दुनिया दे चिंता वर्दी जा रही। असी जिन्हां नूं वड्डा कहंदे ने, बंदा ते बहुत वड्डा है, तो फिर इतना अंदाजा लगा लेना चिंता भी बहुत वड्डी होगी। जो जो मनुख वड्डा हुंदा है तिवें चिंता वधदी है। पातशाह दी बाणी दा फैसला, बड़े बड़े जो दीसी लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। छोटा है मनुख, चिंता छोटी है, वड्डा है, वड्डी चिंता है। आम साधारण मनुख है, थोड़ी चिंता है, चौधरी है, बड़ी चिंता, मिनिस्टर है, बड़ी चिंता है। होर कोई अगा उच्चा ओहदा मिल गया, रात में नींद भी नहीं पैगी, गोलियां खानियां पैणगियां तां नींद आएगी। चिंता जो वध गई। चिंता नहीं सौण देती, चिंता नींद नहीं लियाउण देती। ते जिहड़ी चिंता नींद नूं ही नाश कर देवे, वो चिंता बंदे दी समाधि कित्थों लगण देवे। रात नूं रज के नींद आ गई, दिन भर दा थकेवा दूर हो जाता है, एक मिनट वास्ते समाधि लग गई, जन्मां जन्मांतरां दी भटकना मिट जाती, हौला फुल हो जाता है, मनुख ताजा हो जाता है, नवी कोई जिंदगी दी झलक वेख लेंदा है। ते जिथे नींद खो जाए उत्थे समाधि किथे? ते फिर गजब दी गल है, ज्यों ज्यों मनुख वड्डा होवेगा त्यों त्यों चिंता ये बराबर ही वधण गिया। इधर सुख वधदा जा रही, इधर चिंता, बस बराबर दोवें दीवारां बराबर ही उठणगी। कोई अंदाजा तुसी लाना होवे ना भी इस बंदे कोल किन्नी चिंता होवेगी, तुसी इन्ना ही अंदाजा ला लेना किन्ना को वड्डा है। जिन्ना वड्डा है उतनी चिंता। बड़े बड़े जो दीसे लोग है तिनको व्यापे चिंता रोग। ते चिंता रोग नू साडे देश दे आयुर्वेदिक ग्रंथ कहंदे ने पागलपना।
मानसिक रोग। हुण कोई ताप चढ़िया है, नमूनिया हो गया है, जुकाम हो गया है, सर्दी लग गई है, टाइफाइड हो गया है, एदियां ते गोलियां ले आइए, तुम चिंता दी किथे गोलियां पई मिलदियां इनको मिलदियां। किसी डॉक्टर नूं आखिए बई रोग है सन ते पूछे की रोग है, आखिए चिंता, दे कोई गोलियां। कोई ऐसियां गोलियां नहीं जिहदे खांदे चिंता दूर हो जाए, कोई ऐसी दवाई नहीं जिहदे खांदे चिंता दूर हो जाए, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं डॉक्टर ला दे ते बई चिंता दूर हो जाए, है ही नहीं, दवाई है ही नहीं, रोग वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा। और एक सीमा विच जाके जद चिंता दा बोझ चुकना औखा हो जाए तो दिमागी संतुलन डामाडोल हो जाता है, बंदा पागल हो जाता है। अज दे समय का बड़ा भयंकर रोग है, इस वास्ते पागलों की तादाद बहुत ज्यादा वधदी जा रही है, वधदी जा रही। और सियाणे ते कई दिन होर वधणगे पागल। और मैं सुन के हैरान हो गया ते पढ़ के भी ते देख के भी कि अमेरिका दे कहंदे ने हर 9 तो बाद 10वां बंदा जड़ा है ना या ते पागल है या पागल होने की हालत विच। दुनिया का सब तो धनाड़ देश, साइंस की दुनिया विच जिसने ग्रह नक्षत्रां नूं छू लिया है, लेकिन हालात यह है कि हर 10वां बंदा पागल है या पागल होने की हालत विच। और ये पागलपन समुची दुनिया विच वधदा जा रहा है, क्यों? चिंता वधदी जा रही है। साहब कहते ने बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। असी कहने हैं भी जिहदे कोल बहुता धन है, दौलत बहुती है, शोहरत बहुती है, इज्जत बहुती है, इनू कादी चिंता। पर इस तो उल्ट गल गुरबाणी कहती जिसदे कोल ज्यादा होगी उत्थे ज्यादा चिंता होगी। जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे भ्रमंता, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता। हुण असी कहने हैं बंदे तेनू चिंता करन दी लोड़, तेरे कोल तो बहुत धन है, बड़ी इज्जत है, तेरियां महल माड़ियां ने, तेरियां बावां बथेरियां ने, तेरा संसार बहुत बड़ा है, तेनू कादी चिंता। साहब कहंदे ते गल ना आखो, जितना सिलसिला ज्यादा है उन्नी चिंता। एक कुदरत का एक नियम है, अटल नियम। जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता। जिहदे कोल संसार दी इज्जत दौलत शोहरत जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा चिंता। तुसी ये अंदाजा लगाना होवे कि यह बंदा कितना चिंतातुर है, इन्ना ही अंदाजा लगा लेना इहदे कोल संसार दा कितना ही साजो समान है। दुनिया विच कोई विरला ही जनक हुंदा है जो निश्चिंत होकर राज करे। कोई बिरला महाराजा रणजीत सिंह हुंदा है, होवे राजा ते चिंता ना होवे, होवे शहनशाह ते चिंता ना होवे, होवे बादशाह ते चिंता ना होवे। वरना समुचे मनुखी जगत दे च सिवाय चिंता तो होर कुछ नहीं। पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने चिंतत ही दिसे सब कोय। ते हुण पुछिए पातशाह फिर इहदा इलाज की इलाज है? क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें की खाक इलाज करना वो आप चिंता दे छे, वैद ने की खाक इलाज करना वो आप चिंता दे छे। संसार दे छे ऐसी कोई दवाई नहीं विकदी तुसी खा लो ते चिंता दूर हो जाए। ते चिंता बड़ा भयानक मानसिक रोग है, तुहानू चैन नाल नहीं बैठन देगा। तड़पदे रहोगे, बाहरों हंसदे रहोगे, अंदरों करबदे रहोगे, बाहरों खुश प्रतीत होवोगे, अंदरों गमगीन होवोगे, बाहरों चेहरे के मुस्कुराहट होवेगी, अंदर भयंकर तूफान आउणगे। और इन्हां तूफानां नूं तुसी कितना भी छुपाओ अख दस देगी, चेहरा दस देगा। इस वास्ते जिहड़ा असीं महापुरुषां नूं कहने ना भी अंतरयामी हुंदे ने, वो अंतरयामी होने का मतलब इन्ना है कि मनुख दे अंदर जो कुछ है वो चेहरे ते प्रगट होता है, लाजमी होता है। हिरदा पवित्र है, पवित्रता चेहरे ते प्रगट होवेगी। हिरदा मैला है, मैलापन चेहरे ते प्रगट होवेगा। हिरदे विच क्रोध है तो अखां विच प्रगट होवेगा। हिरदे विच वासना है, अखां विच प्रगट होवेगी। हिरदे विच दुविधा है, चेहरे ते प्रगट होवेगी। हिरदे विच चिंता है, चेहरे ते प्रगट होवेगी। हिरदे विच खुशी है, चेहरे ते प्रगट होवेगी। दस देते। इस वास्ते कहते महापुरुषों को कोई गल छुपी नहीं रहती। जैसे आम बंदे सारे जगत नूं ठग सकते, महापुरुषों नूं नहीं ठग सकते। सज्जन ठग ने सारी दुनिया ठगी सी। एक धर्मशाला भी बनाई सी, एक मस्जिद भी बनाई सी, ते लोकी कहंदे सन इह ते फकीर है, इह ते संत है। देखो हिंदुओं वास्ते भी इसने इंतजाम किया है, मुसलमानों वास्ते रात रहन नूं भी देंदा है, लंगर भी देंदा है। इते बड़ा परोपकारी मनुख है। पर अज ओ महापुरुष आ गया सज्जन दे कोल जो चेहरे नूं पढ़ लैंदा सी,
जो चेहरे दे तासरात पढ़ लैंदा सी। सारी दुनिया नूं सज्जण दिसण वाला गुरु नानक नूं ठग दिसे। सज्जण नहीं है, ठग है, बहुत बड़ा ठग है। दिस पई चेहरे ने अकाशी पेश कर दी। तो खैर मैं गल लमकावा ना, ये चेहरा अगर पढ़न दी याद थानू आ जाए ते हर बंदा चिंता विच बैठे। ते चिंता दा संबंध है आने वाले कल नाल, भविष्य दे नाल। ते चिंता भविष्य दी आउंदी है। कहंदे ने जिहड़े जवान ने ना, इन्हां नूं बहुती चिंता आउंदी है भविष्य दी, क्योंकि जे जिंदगी अगां देखण नूं मजबूर करदी अगे वेख अगे वेख। ते जिहड़े बुढ़े ने ना, ये अगे नहीं वेखते। पता क्यों? हुण अगे वेखण ते सिवाय मौत तो और कुछ दिसदा नहीं। हुण अगे करोगे थोड़ा जिहा अगे सुरत करके वेखो ते अगे ते मौत दिसदी है। इस वास्ते बुढ़े पिछे मुड़दे ने। वो जिथे भी 10 बैठणगे बचपने दीयां गल्लां करनगे, जवानी दीयां गल्लां करनगे, अगे दीयां गल्लां नहीं करनगे। भविष्य दी गल करते भविष्य दे सिवाय मौत तो और है ही नहीं कुछ। पर जिथे 10-20 जवान बैठे होवन, भविष्य दी गल करदे, आने वाले समय दी गल करदे। क्योंकि अजय काफी जीवन है, अजय मौत दूर है। तो भविष्य दी चिंता दे चोंदे ते बुढ़ा माजी दियां यादां दे चोंदा है। गुजरे होया कल किस तरह सी। सियाने मनोविग्यानी कहने ने 5-7 बिरद जिथे बैठे होवन, समझ लो बचपने दीयां गल्लां चलन गियां सी। इंज हुंदे सी, असीं इंज खेडदे हुंदे सी, अज ही फलाना काम करदे हुंदे सी, या जवानी दीयां गल्लां होणगे। ते इन्हां नूं आपू जरा अगां दी गल करो ते अगां ते सिवाय मौत तो है ही नहीं कुछ। इस वास्ते अगे दी गल नहीं करदे। अगे दी गल, भविष्य दी गल जवान करदा है। इस वास्ते किसी हद तक बुढ़े नालों भी ज्यादा क्रोधी ते ज्यादा दुखी हो जाता है जवान। बड़ा बेजार हो जाता है, बड़ा बेचैन होता है। भविष्य चिंता। भाई साहब भाई वीर सिंह जी महाराज का फरमान है, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जिहड़ा समा लंघ गया ओदियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहीआं ने, ते जिहड़ा समा आने वाला है ओदी चिंता पता नहीं किस तरह होवेगा। तो हुण ये जिहड़ी चिंता है इनू किवें दूर करिए। और हर बंदा चिंता च है, चाहे घर विच बैठा होवे, चाहे बाजार विच बैठा होवे, चाहे गुरुद्वारे बैठा हो, चिंता च बैठा। डठे हुए सिर, सोग भरियां अखां, मथे दे वट, इस गल दा सबूत है बंदा चिंता दे च। और चिंता मानसिक रोग, बड़ा भयंकर रोग है। किस तरह दूर होवे? गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर इलाज दस्या है, मैं थोड़े सामने रखा। चिंतत ही दिसे सब कोय, चेते एक तही सुख होए। चिंता ते चिंतन दो शब्द ने संस्कृत दे बड़े कीमती। जिथे चिंतन चल पाएगा उथे चिंता नहीं होए, गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते। ते जिथे चिंतन नहीं उथे चिंता। चिंता दा होना इस गल दा सबूत है, इथे चिंतन नहीं, याद, सिमरन, चिंतन। जिथे चिंतन चल पाए उथे चिंता नहीं होगी, ते जिथे चिंता है समझ लो उथे चिंतन नहीं है। ये लाजमी गल। चिंतत ही दिसे सब कोय, चेते एक तही सुख होए। एक दा ये चिंतन करे ते एक दा चिंतन सारियां ही चिंतावां दा अंत कर देता। फिर जो कुछ है सो ठीक है। बहुती चिंता जिहड़ी हुंदी है ये मनुख नूं रिज़क दी हुंदी है, रोजी दी। ते सतगुर दी बाणी दा ऐसा फैसला है, रोजी तेरे हत्थां च नहीं है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, राज़क रहिंद है कि रोजी दहिंद है। जिसने जीवन दिता, जिसने प्राण दिते ने, जिसने सूरज चंद तारे तैनू दिते हैं, इदी रोशनी तो तू लाभ पे उठाना है। पर धनवाद असी कदी नहीं दिता सूरज नूं, कोई दिता है? पता क्यों? मुफ्त च पई मिलदी। घर दे च हुण जिहड़ी बिजली जलदी है, पावर, ते महीने दे महीने आ जांदा है बिल, उतार दे। इस वास्ते कई दफा संकोच नाल खर्च करने का भी ख्याल पैदा हो जाता है। पर सदियां तो रोशनी दे रहे हैं, सदियां तो चानना दे रहे, पर चूंकि मुफ्त दे रहे इस वास्ते कदी धनवाद भी नहीं। यह हकीकत है। हर चे जूद बरा आयद देर ना पाद। जेड़ी चीज छेती मिले, जल्दी मिले, बिना मेहनत दे मिले, मनुख
ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਬਿਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ। ਦਰਖਤਾਂ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ, ਹਰਿਆਵਲ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਅਕਿਰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਝੁਕਿਆ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ। ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣਤਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚ ਆਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ? ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇ, ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਕਿਉਂ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਬਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਫਿਜ਼ੂਲ। ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਗਮੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮਫਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਗਮ ਨਾ ਕਰ। और कलगीधर पातशाह के कई बचन किधर हैं ना समझ लेना, बच्चियां दे बचन नहीं, ये शायर जो है कवियां दी कविता है नहीं, ये अमृतमय बचन ने, जिंदगी दी सही हकीकत चो निकले ने। राज़क रहीन है के रोजी देन है, राज़क रहीन है के करमुल करीन है। वो रिज़्क देने वाला है, वो रोजी देने वाला है। पान पानी अन्न इस सब दा दाता परिपूर्ण परमात्मा ईश्वर है, अकाल पुरख है। तो शेख सादी साहब कहते हैं, गमे रोजी मखुर मजन और के दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल एजद कल खुनद पछताने मादर रा। ईरान दा ये उगा संत कहंदा है कि होर तू कोई चिंता करनी है ते कर ले, पर रिज़्क दी चिंता ना करें, रोजी दी चिंता ना करें। जन्म तेरा बाद दे चो है, मां दे अस्तना दे दुध पहले बन गया, रोजी तेरी पहले ही पई। ते जे जन्म तो पहले तेरी रोजी पई है, तो फिर चिंता केड़ी गलती? तो समझदा क्यों नहीं? प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलो कीनो साबन सो। दूध पहले ही बना देता है परमात्मा ने, जन्म तेरा बाद दे चो है। इस वास्ते गमे रोजी मफुर मजन और आके दफ्तर का। जद बंदा समझदा सब कुछ मेरे हाथ दे ची है, मैं ही करना है, तो फिर की होगा है? चिंता बढ़ती है। ते साहिब कहते तेरे हाथ च कुछ भी नहीं, इस चक्कर च ना पई। इसका बल नहीं, इस हाथ करन करावन सर्व को हाथ। इसके हाथ होए तां सब कुछ ले, ते जो बंदे दे हाथ च होए ते बंदा ते सब कुछ ले लेने। हुण इत्थे हर बंदे च कोई ना कोई घाट महसूस होंदी है, कोई करूप है, कोई कुमती रखदा है, किसी दा कद ठेंगना ते किसी दा कद बहुत ही उच्चा हो गया, कोई सुभाव दा तिखा है, किसी नूं कोई चीज संसार दे च नहीं मिली, किसी नूं कोई चीज नहीं मिली। आखिर कुछ ना कुछ घाट ते हर बंदा महसूस करता है। ते साहिब कहंदे इसके हाथ होए तां सब कुछ ले, अग्या नहीं मन रोस करे। तो एक दा चिंतन कर ताकि तेरियां तमाम चिंतावां दा अंत हो जाए। मनुख दी बरबल समस्या है चिंता, तेदा समाधान की है चिंतन। गुरबाणी कहती है चिंतन कर, ज्यों ज्यों तू चिंतन करेगा त्यों त्यों चिंतावां सर्दियां जाणगियां, बदम पैणगियां। और एक दिन ऐसा होगा तेरे कोल चिंतन ते होवेगा, चिंता नहीं होवेगी। ते जे चिंता है तो फिर तेरे कोल चिंतन नहीं है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिशां करन, सारियां दे मन विच
अपना चिंतन देवन, अपनी याद दें, ताकि सारियां दियां चिंतावां दा अंत होवे ते जिंदगी सुख शांति नाल आनंद नाल बतीत होवे। इतने बचन इस वक्त प्रवान करना है। लंबा सफर करके मैं थोड़े कोल पहुंचे हाँ, तो कल तो जिवें गुरु बाबे ने प्रेरणा की थोड़े सामने गुरमत दीयां गल्लां रखांगे। अज जो कुछ भी थोड़ी झोली दे च पाया है, सतगुरु मैनूं भी इसदा रस बख्शण, तुहानूं भी बख्शण। चिंतन करदियां करदियां साड़ियां भी चिंतावां जिहड़ियां ने कि मुकन, ताकि खिड़े मत्थे गुरुद्वारे बैठ सकीए, खिड़े मत्थे दुनिया नाल मिल सकीए, खिड़े मत्थे अपने परिवार दे च रह सकीए। इंज नहीं मुरझाए हुए दुकान ते बैठिए, मुरझाए हुए कामकार करिए, मुरझाए हुए ते सिर ढा के घर दे च बैठे होइए ते सिर ढा के गुरुद्वारे बैठे होइए। नहीं, खिड़े हुए कमल दे फुल दी तरह परिवार दे च बैठिए, संसार दे च बैठिए, गुरुद्वारे बैठिए, ताकि सानू वेख के अगला कह सके इथे चिंता नहीं, इथे चिंतन है। चिंतत ही दिसे सब कोय, चेते एक तिनी सोय। क्योंकि संसार मैला है। सवेरे मनु घरों नहा धो के निकले, साफ सुथरे कपड़े पा के निकले, शामी घर आया है, वैसा नहीं है। हो गए हाथ मैले, हो गया मुंह मथा मैले, हो गए कपड़े मैले। भावें मैल मनुख दी मंग नहीं, मैला हो जाता है, बिना यतन दे हो जाता है, पर निर्मल बिना यतन दे नहीं होएगा, बिना साधना दे नहीं होएगा, बिना मेहनत दे नहीं होएगा। ऐसी मैल है जो कपड़ियां नूं, हथ पैरां नूं, मुंह मथे नूं मैला कर देंदी। जगत मैल है। दूर क्यों जाओ, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भगत कबीर इस जगत नूं कज्जल दी कोठड़ी कहंदे। काजर कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बन्योरी। कमाल है एक कि जन्म कज्जल दी कोठड़ी दे च होवे, जीवन भी कालख कज्जल दी कोठड़ी दे च होवे, फिर भी हथ दागी ना होवन, पैर मैले ना होवन, कपड़े मैले ना होवन। ये तो करामात है गुरु अर्जन देव जी महाराज। कबीर कहंदे ने, कबीर जग का जल की कोठड़ी, अंध परे ते समाए। एक ते कोठड़ी कज्जल दे, जमीन काली, दीवारां कालियां, छत काली, और कालक बरस रही है। अंध परे ते समाए, दूसरे अंधे, कालक दिखाई नहीं देंदी। कालक पै रही है, कालक दिखाई नहीं देंदी। ये जो उदाहरण देता है भगत कबीर ने, पाप करके मन मैला है, पाप दिखाई नहीं देंदे। पाप बुरा, पापी को प्यारा। महाराज दी बाणी कहंदी है, पाप ते प्यारा लगदा है, होवेगा बुरा। जगत लई, प्रभु लई, मनुख नूं ते प्यारा लगदा है, ते प्यारा जान के करदा है। एक दफा मैं अर्ज करा, अंध परे ते समाए। पाप पाप ही नहीं दिखाई देंदा, बुरा बुरा ही नहीं दिखाई देंदा, अनर्थ अनर्थ ही नहीं दिखाई देंदा, वरना मनुख ना करे। इसे अगली गल, जग का जल की कोठड़ी, अंध परे ते समाए। हाँ बलहारी तिनको पैस जो निकस जाए। कबीर कहंदे मैं सदके जांदा उन्हां दा, उन्हां तो बलहारने जांदा। जन्म होया कज्जल दी कोठड़ी विच, पर हत्थां नूं दागी नहीं आउण दिता, पैर भी दागी नहीं ने, मुंह मथे नूं भी कालक तो बचाया है। कबीर कहंदे मैं सदके जांदा। ऐसे हथ लभणे संसार दे विच बड़े औखे ने, जिन्हां हत्थां ने कदी गलत ना कीता होवे, गुस्ताखी माफ। ऐसे पैर लभणे बड़े औखे ने जो गलत पासे गए ना होन। ऐसी रसना लभणे बड़ी औखी है जिसने गलत बयानी ना की होवे। ऐसियां अखां लभणियां बड़ियां औखियां ने जिन्हां ने गलत वेख्या ना होवे। ऐसे कन लभणे बड़े औखे ने जिन्हां ने कदी गलत सुनिया नहीं, और ऐसा मन जिन्हें कदी गलत सोचिया नहीं, गलत विचारिया नहीं,
गलत चिंतन नहीं किया। कबीर कहने मुश्किल है। अगर कज्जल दी कोठड़ी दे च रह के कोई बेदाग है और बेदाग होके निकल गया, कबीर कहने मैं सदके जाना उसका चलिया ते कालख दे च है पर पैर इस दे कालख तो रहत ने, जीविया ते कज्जल दी कोठड़ी दे च है पर काला नहीं होया, रिया ते संसार दे च जो मैल है, मैला मलता एहो संसार लेकिन फिर भी निर्मल है। एक परचा है संसार मैल है, ये निर्मल किवें होना है। एक ढंग ते बंदे नूं आ गया, तन मैला हो गया, हथ पैर मैले हो गए ने, बस्तर मैले हो गए ने, धो लैंदा। कारण मैल चंगी नहीं लगती, समाज नूं चंगी नहीं लगती, और मैल आपे ही पैंदी है, आपे ही पैंदी है। और मैल समाज नूं चंगी नहीं लगती, मैल ढकनी पैंदी है, फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ नहीं। पेशान दे लिबास हर किरा ऐवे दीद, बेऐबा रा लिबास उरिया नहीं दात। जो मनुख छुपांदा है ढकदा है, सरमद कहते ने वो पाप होवेगा, गलत होवेगा, सही नहीं होवेगा। सही नूं छुपाण दी लोड़ नहीं, गुणा नूं छुपाण दी लोड़ नहीं, अवगुण नूं मनुख छुपांदा है, गलत नूं छुपांदा है, पाप नूं छुपांदा है, दूजे नूं ना पता चले। जो छुपाया जा रहा है मैल है, मैल नूं ढकना पैंदा है, गंदगी नूं ढकना पैंदा है। चाहे वह स्थूल रूप दे गंदगी है, चाहे वह सूक्ष्म रूप दे है, चाहे बाहर गंद पई है ढकनी पैंदी है, चाहे मन दे पै गई है छुपानी पैंदी है। जो छुपाया है वो गंद है, जो छुपाया है वो मैल है, जो छुपाया है वो सही नहीं है। पेशान दे लिबास हर किरा ऐ बेदीद। सरमद कहता है मनुख ने इन्हां कपड़ियां दे बहुत कुछ छुपाया है, निरा तन नहीं छुपाया, पता नहीं कितने गुनाह छुपाए ने, कितने पाप छुपाए ने। जिसनू छुपाना पै वो पाप है, जिसनू ढकना पै वो मैल है, सही नहीं है। तो मैं अर्ज करा हाथ दे उत्ते पैरां ते कपड़ियां ते जो मैल पै जाती है, हाथ भर जान पैर भर जान, अर्थ थोड़े सामने रख लीए, भावें कल खुलासा किया सी, भरीए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे, खे नाल किधरे हाथ भर जान, मैल नाल किधरे पैर भर जान, मुंह मथा भर जाए, कपड़े भर जान। पानी धोते उतरस खे, पाया पानी खे गई, पैर साफ हो गए, हाथ साफ हो गए, मुंह मत्था साफ हो गया। पर खे दे नाल नाल जरा होर गहरी मैल पै गई, मौत पलीती कपड़ हो। जे किधरे मल मूत्र नाल कपड़ा मैला हो जाए, मल नाल शरीर दी मैल नाल कपड़े मैले हो जाए, दे साबुन लईए ओ धोए, तो पानी दे नाल नाल फिर साबुन, उस साबुन दे देंदियां पानी दे नाल उस मल नूं, शरीर दी मल नूं कपड़े चों कढ़ दईदा है। पर भरिए मत पापां के संग। अगर मन पाप नाल भर जाए, सोचनी पाप नाल भर जाए, चितवनी पाप नाल भर जाए। दास ने कल अर्ज की सी, विद्वाना ने पाप कुल 10 मन्ने ने, चूंकि जीवन भी भर दोहराए जाते ने, रिपीट किए जाते ने, तो जिंदगी दे हजारां लखां आनंद बन जाते हैं। कई दफा मनुख इस जीवन दे इन्हां पापां नूं धोण दे असमर्थ होंदा है, तो पाप नाल चलदे ने, अगले जन्म दे चलदे ने, तो पिछले भी पाप ते नਵੇਂ होर शुरू। इस तरह पाप जन्म दर जन्म वधदे जांदे, वधदे जांदे, वधदे जांदे। और मैं एक दफा दोहरा दियां, 10 पापां दे चों 4 पाप ते जबान दे मनदे ने। व्यर्थ बोलना,
मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, ये चार पाप रसना द्वारे होंदे ने। मन करता है। तीन पाप मन खुद करता है, जबान की लोड़ ही नहीं। की करता है? बुरा सोचता है किसी दी जान बारे, एक पाप। बुरा सोचता है किसी दे माल बारे, दूसरा पाप। बुरा सोचता है किसी दी इज्जत आबरू बारे, ये तीसरा पाप। ये तीन पाप मन करता है ते तीन पाप ही तन दे ने। लेकिन अक्सर मनुख तन नूं पाप तो बचांदा है, क्योंकि समाज है, कानून है, हथकड़ियां ने, जेल है। तीन पाप ही तन दे ने। किसी दी जान खो लेनी, किसी दा माल खो लेना, किसी दी इज्जत आबरू लुट लेनी, ये 10 पाप ने। जिंदगी भर दिन प्रतिदिन होंदे रहंदे ने, मनुख करदा रहिंदा है। इस तरह फिर मनुख दी मत इस पापां दी मैल दे नाल भर जांदी है। ये पानी नाल नहीं धुलेगी। किसी तीरथ दे जल विच इतनी समर्था नहीं कि पाप नूं धो देवे, नहीं धुलदे। भावें ऐसियां मनोतां ने, ऐसियां धारणावां ने। चंद्र ग्रहण वाले दिन, सूर्य ग्रहण वाले दिन कुरुक्षेत्र दे इशनान कीता जाए, पाप धुल जांदे ने। माघी ते प्रयागराज दे इशनान कीता जाए, पाप धुल जांदे ने। ते कुंभी ते इशनान कीता जाए, वड्डे वड्डे पाप धुल जांदे ने। कुंभ ते इशनान कीता जाए, जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जांदे ने। 12 सालां तो बाद कुंभ लगदा है। भारत दे 4 शहरां विच, नासिक दे गोदावरी दे कंढे ते, उज्जैन दे शिप्रा नदी दे कंढे ते, हरिद्वार दे गंगा दे तट ते, और प्रयागराज दे संगम ते, जमुना गंगा दे संगम ते। हर 12 साल तो बाद एक कुंभ आंदा है, वारी वारी। एक शहर दी वारी फिर 48 सालां बाद आंदी है। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार ते प्रयागराज। पिछे जब हरिद्वार विच कुंभ लगया, एक अंदाजे के मुताबिक कहंदे 3.5 करोड़ बंदियां ने इशनान किया। कोड़ लगी हुई सी, एक डुबकी लाई है, पाप गए। काश ये इतना सस्ता काम आंदा, इतना सौखा आंदा, जगत विच ये पाप होने नहीं धुलदे। बल्कि कुंभ ते भी पाप हो गए, साधु लड़ पे सन कुंभ ते। गृहस्थियां दी गल छड़ो, साधु लड़ पे, और गालबन 40 साधु मारे गए। अफरा तफरी मच गई। हरिद्वार दे कर्फ्यू लाना पिया, कुंभ ते 40 साधु मार दिते। झगड़ा 2 साधुआं दी मंडलियां च, ये असी पहले इशनान करने ते दूजे ने असी पहले कर। इस गल ते झगड़ा। गए सन जन्मां जन्मांतरां दे पाप धोण, होर पाप चाड़ ले। आप दी गैखली अर्ज करा, किसे तीरथ दे जल दे इतनी समर्था नहीं है मनुख दे पाप धो दे। तो क्या पाप धुल ही नहीं सकते? सब के धुल सकते हैं। भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नावे के रंग। अगर पापा नाल मत भर गई है, मन भर गए है, धुल सकते ने नाम दे रंग नाल। वाहिगुरु वाहिगुरु मैं जपा, पर कोई रंग नहीं। रंग की है रस, आखण का कोई रस नहीं। इस वाहिगुरु आखण नाल नहीं धुलणगे, नहीं धुलणगे। क्योंकि कोरी गल मैनू जरा करनी आउंदी नहीं। इस दफा इस तरह करोड़ दफा भी आखी है, नहीं धुलणगे। रंग नाल एक दफा भी आखी है, सारे ही धुल जाणगे, धुल जाणगे। पर करोड़ दफा इस वास्ते आखना है, मतां किधरे एक दफा रंग नाल कह सकिए, बस इस वास्ते कहना। करोड़ दफा जपजी साहब इस वास्ते पढ़नी है, मतां किसी दिन रंग नाल पढ़ लईए।
करोड़ां वार इस वास्ते कीर्तन सुनना है, मतां किसी दिन रंग दे सुन लईए। बार बार इस वास्ते कीर्तन करना है, मतां किसी दिन रंग दे हो जाए, धुल जाणगे पाप। नाम दा रंग पाप नूं धो देंदा है, ओ धो पे नावे के रंग। अगली विचारधारा आप श्रवण करो तो मैं थोड़े सामने खुलासा रखा। उन्हीं पापी आखड़ना है। समाज जो ये कह देंदा है ये पुनीत बंदा है, ये पापी बंदा है। महाराज कहते कहण मात्र गल नहीं है, और ये फैसला समाज नहीं करेगा, ये फैसला समाज दे हथ दे च नहीं है। क्यों? थोड़ा जिहा थोड़े सामने मैं खुलासा रखते हैं। कर कर करना लिख ले जाओ, जो मनुख करदा है लिखिया जाता है, उहदे संस्कार बन जाते हैं। पर चूंकि करना दो तरह का है, शरीर दे तल ते जो कीता जाता है उन्होंने कहते हैं कर्म कृत, ते मन दे तल ते जो चलता है उन्होंने कहते हैं कर्म विचार। समाज कृत वेखदा है, बस कृत वेखदा है। समाज वेखदा है मेरी कृत की है, परमात्मा देखदा है मेरी नीयत की है, नहीं देखदा कृत। बड़े ध्यान नाल सुनना। समाज देखदा है मैं करदा की हां, परमात्मा देखदा है मैं सोचदा की हां। समाज ये देखदा है मेरी करनी की है, परमात्मा ये देखदा है मेरी सोचनी की है। समाज जो मनुख बारे फैसला करता है, परमात्मा का फैसला उस तो उल्ट होता है, बिल्कुल समाज नाल मेल नहीं खाता। ये भी महसूस कर लें, क्योंकि समाज नूं सिर्फ कृत दिखाई देती है। कानून ते समाज उस मनुख तो संतुष्ट है जिहदी कृत ठीक है, परमात्मा संतुष्ट नहीं। परमात्मा ते उदों जद नीयत ठीक होवे। तो मैं एक दफा फिर दोहरावां, समाज ये देखदा है मेरा किरदार की है, परमात्मा ये देखदा है मेरे विचार की ने। समाज ये देखदा है मेरी कृत की है, परमात्मा ये देखदा है मेरी नीयत की है। समाज फैसला करदा है मेरी कृत दे मुताबिक, परमात्मा फैसला करदा है मेरी नीयत दे मुताबिक। बिल्कुल उल्टी गल है, बिल्कुल उल्टी गल है। मेरी नीयत की है समाज नूं नहीं पता, थोड़ी नीयत की है मैनू कुछ नहीं पता, मेरी नीयत की है थानू कुछ नहीं पता। पर ऐसा नहीं है कि परमात्मा नूं नहीं पता, अगर उसनू इतना भी पता नहीं तो फिर तो कुछ भी ना होया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, समाज देखदा है ये करदा की है, परमात्मा देखदा है सोचदा की है, ये सोचदा की है। समाज दी सोचनी तक पहुंची नहीं है। अगर इत्थे सतगुरां दी हजूरी च बैठे होया भी मैं माड़ा सोचा, किसी नूं की पता, की पता। ते कोई भी माड़ा सोचे, किसी नूं की पता। समाज दी सोचनी तक पहुंच नहीं है। तो मैं फिर दोहरावां, समाज देखदा है मैं करदा की हां, परमात्मा देखदा है मैं सोचदा की हां। समाज देखदा है इहदी कृत की है, परमात्मा देखदा है इहदी नीयत की है। समाज मेरा फैसला करदा है मेरी कृत दे मुताबिक, परमात्मा मेरा फैसला करदा है मेरी नीयत दे मुताबिक। मेल नहीं खांदे, नहीं खांदे। औखे ना होना, कई दफा समाज की दृष्टि शरीफ मनुख जरूरी नहीं कि परमात्मा की दृष्टि भी शरीफ हो। समाज की दृष्टि च दानी ते ज्ञानी मनुख जरूरी नहीं कि परमात्मा की दृष्टि भी दानी ते ज्ञानी हो, क्योंकि परमात्मा कृत के मुताबिक फैसला ही नहीं करता, नीयत के मुताबिक करता है। हजारां मनुखा ने सानू इस तरह आख्या, कई दफा मैं उन्हां कोल सुनिया, इतना असी ठीक करते हैं, इतना असी ठीक करते हैं, फिर भी दुखी, फिर भी दुखी। ये प्रश्न कईयां दा हो सकता है, ये भी मैं इतना तो असी ठीक करते हैं फिर भी दुख है। कि परमात्मा है भी सही कि नहीं है। कि उस दिन दे बोल भी मैं दोहरा देवा, भरोसा कोई लंबा साथ नहीं देगा। परमात्मा ते भरोसा है कि कोई लंबा साथ नहीं देगा, भरोसे टूट जाते होंगे।
ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਡਿਠਾ ਕਿਆ ਲਾਈਏ, ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪੜ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਵੀ ਅੰਧਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਮਨ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਤਨ ਅੰਧ। ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਲਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ, ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਪੱਥਰ ਬੰਦ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਚੰਗਿਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਜੋ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਕੁਝ ਰਸ ਮਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਆਖਣ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਦੇਖੇ, ਇਹਨੇ ਰਸ ਮਾਣੇ। ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੇ ਸੰਤਈ, ਜੇ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸੰਤਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ, ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਗੀ। ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਭਰੋਸੇ ਰੋਜ਼ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਰੋਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਬਲਦੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਬਾਲ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਕੰਡੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, जिथे एक दा चिंतन है उथे सारियां ही चिंतावां दा अंत है। पातशाह सारियां दी चिंतावां दा अंत करे, भुलना चुका माफ। गज बज के फतेह प्रवान करनी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।